اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے اور انہی میں سے کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور جب مسلمانوں سے الگ ہو جاتے، اکیلے میں تنہائی میں اپنے کفار کے ساتھ ہوتے، تو یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کی ہے، در حقیقت ہم تو آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ ان کی دوغلی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کا بھی منہ رکھتے تھے اور اپنے کفار یہود و ہنود کا بھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے قرآن نے منافق کہا ہے، اور نفاق اللہ کے ہاں اتنا مبغوض ہے کہ اللہ رب العزت منافق کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالے گا جس پر ساری جہنمی لوگوں کا بوجھ ہوگا۔ سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں جو یہود تھے ان میں سے بعض کا اللہ ذکر کر رہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی تورات کا علم ان کے پاس نہیں ہے، چٹھے ان پڑھ ہیں۔ اور یہ جہالت بھی بہت ماڑی شے ہے۔ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے علم عطا کرتے ہیں، اور جو جاہل آدمی ہے جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، اس نے علم کو سیکھا نہیں ہے، یہ آدمی اور جانور ایک برابر ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ یہ انسان ہے اور وہ جانور ہیں۔ ہم جو لوگ ہیں ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، کوئی ڈرائیور بن گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی کیا سے کیا بن گیا، ہزاروں ایسے کام ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اور اس میں تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھتے تو ہم اللہ کا دین نہیں سیکھتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ساری زندگی ایسی جہالت میں گزار دیتے ہیں کہ نماز کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا، جو ضروریات دین ہیں، فرائض ہیں، ان کا بھی علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کی ہر باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ایک ایک بات کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن دین کی جب باری آتی ہے، ہمارا 50 سال کا بندہ اس کی نماز درست نہیں ہے، 40 سال سے نمازی ہے، 50 سال کا نمازی ہے، 60 سال کا نمازی ہے، اس کی نماز ہی غلط ہے، نماز نہیں سیکھی۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں یہ نہیں سیکھا، سنتیں کتنی یہ نہیں سیکھا، نماز کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں کیا واجب ہیں یہ نہیں سیکھا۔ اب جب یہ چیزیں سیکھی نہیں ہیں تو عبادت صحیح کیسے ہوگی؟ میں جو غلطی کروں گا مجھے کیا پتا چلے گا میں نے نماز میں کیا غلطی کی، نماز میری ہوئی ہے یا نہیں ہے، کون سی غلطی ہے جس سے نماز نہیں ہوتی، کون سی غلطی ہے جس کا متبادل حل ہے؟ یہ چیزیں تو تب ہمارے علم میں آئیں گی جب ہم سیکھیں گے۔ تو ہم لوگ بھی اس اعتبار سے امی ہم بھی ہیں۔ اللہ نے یہاں مخاطب تو یہود کو کیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امی ہیں، لیکن اس حساب سے امی ہم بھی ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس دنیا کی بڑی ڈگریاں آ گئیں، کسی نے ماسٹر کر لیا، کسی نے فلاں کر لیا، یوں کر لیا، اس سب کے باوجود بھی ہم امی ہیں، اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ اگرچہ ہر آدمی کے لیے عالم بننا ممکن نہیں ہے، لیکن ضروریات دین کا علم سیکھنا تو یہ ضروری ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ تو اس حساب سے امی ہم بھی ہیں کہ ہمارے پاس بھی کسی چیز کا علم نہیں ہے، دنیا کی ہزاروں باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، دنیا کے قصے اگر شروع کرنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گھنٹوں ہماری محفل ختم ہی نہیں ہوتی، جس میں کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، ادھر کی بات ہوتی ادھر کی بات، گھنٹوں گزر گئے پتہ نہیں چلا، جی 2 گھنٹے ہو گئے یار، پتہ نہیں چلا۔
3 घंटे गुजर गए, पता नहीं चला। दुनिया की हर बात उल्टी सीधी हम करते हैं, लेकिन दीन का इल्म हमारे पास नहीं होता, और उसके लिए हमारे पास वक्त भी नहीं होता। हम वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सारा वक्त दुनिया के लिए है, उन चीजों के लिए और उन असबाब के लिए है कि जिन असबाब के जरिए हमारे पास रुपया आए, हमारे पास पैसा आए। उन असबाब को इख्तियार करने के लिए वक्त है। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, नमाज सीखने के लिए, बुनियादी अहकामात शरीयत के सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इस हिसाब से तो उम्मी हम भी हुए ना जी। अगर से हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये है, मैंने ये किया, ये सब के बावजूद हम उम्मी हैं। तो उम्मी होना एक ऐब है, जाहिल होना एक ऐब है। तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि वमिनहुम उम्मीयूना, इन अहले किताब में से बाद लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने सबका जिक्र नहीं किया इसलिए कि अहले किताब में से एक पूरा ग्रोह ऐसा भी था जो पक्के ठक्के मुसलमान थे, जो हुजूर पर ईमान भी लेकर आए। जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान कबीले के लोग, ये भी यहूदी थे लेकिन मुसलमान हो गए थे। और अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु यहूद अपने कबीले के अंदर वो मकाम रखते थे, बहुत बड़ा मर्तबा था इनका कि पूरा खानदान, पूरा कबीला इस बात पर मुत्तफिक था कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो कह दें वो हर्फ आखिर है, उनकी हर बात को तस्लीम किया जाएगा, हर बात को माना जाएगा। और वो उनकी बहुत तारीफें किया करते थे यहूद अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की। चनाची जब अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा, ये अल्लाह के रसूल की महफिल में आ गए, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊं अपने कबीले के लोगों को दावत देने के लिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जरा तवक्कुफ करो, थोड़ा सब्र करो, अभी नहीं जाओ। मुमकिन है कि आपकी सारी कौम आपकी मुखालिफत करे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के लोग मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं मेरा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनके सामने जब इस्लाम पेश करूंगा, अपना इस्लाम, तो मुझे देखकर वो भी मुसलमान हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चलो अपनी कौम के लोगों को बुलाओ। कि बहुत सारे यहूद आ गए, उनके खानदान के कौम के लोग, और उनके सामने अल्लाह के रसूल ने फरमाया, भाई हाँ बताओ भाई, अब्दुल्ला बिन सलाम का मर्तबा तुम लोगों में कैसा है? कहने लगे कि वो तो भाई फरिश्ता सिफत आदमी है, उनकी बात तो हमारे लिए हर्फ आखिर है। अब्दुल्ला बिन सलाम का हमारे यहां बड़ा मकाम और मर्तबा है, वो जो बात कहेंगे हम उस पर आमीन कहेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अच्छा, अगर ये बताओ कि अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो जाए। उन्होंने कहा, ये तो मुमकिन नहीं है, अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान नहीं हो सकते। तो इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम अंदर से बाहर तशरीफ लेकर आए और आकर सबके सामने अपने इस्लाम का इजहार किया, ईमान का इजहार किया। तो वही लोग जो थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला बिन सलाम की तारीफें करते थकते नहीं थे, उनने कहा, यह बड़ा बदबख्त आदमी है, यह बड़ा मलून आदमी है, यह हम में सबसे नाकार आदमी है। वही लोग जो थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि अब्दुल्ला बिन सलाम की बात हर्फ आखिर है हमारे लिए, अभी जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम अपना पेश किया, ईमान पेश किया, वो सारे उनके मुखालिफ हो गए। बहरहाल आगे चल के बहुत सारे लोग फिर मुसलमान भी हुए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वमिनहुम उम्मीयूना, उनमें से बाज ऐसे यहूदियों में से ऐसे लोग हैं जो उम्मी हैं, जाहिल लोग हैं, उनके पास ला यअलमूनल किताबा, किताब का इल्म उनके पास नहीं है। क्योंकि तमाम उलूम का जो मंबा है वो उस दौर के अंदर तौरात थी जनाब रसूलुल्लाह के जमाने में, और अब तलक और क़यामत तलक तमाम उलूम का मंबा, बुनियाद, माखद ये अल्लाह का कुरान है। क्या है? ये अल्लाह का कुरान है, ये तमाम उलूम की बुनियाद है। उम्मुल उलूम अल्लाह की किताब कुरान है। तो उस जमाने के अंदर चूंकि यहूदियों के जमाने में तौरात थी, तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया कि इन लोगों के पास तौरात का इल्म ही नहीं है, इसलिए ये जाहिल है। इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर इस आयत को हम अपने आप पर लें कि हम जो मुसलमान हैं, हमारे पास किताब का कितना इल्म है। एक तो यह कि कोई आलिम है, किसी ने किसी के सामने बैठकर पढ़ा, सीखा, इल्म हासिल किया, अलग बात है। लेकिन आलिम उलमा से हटकर जो आम आवाम है, आम आवाम के लिए हम ये बताएं कि उनके पास, हमारी आवाम के पास कुरान का कितना इल्म है। अल्लाह यहूदियों के लिए कहते हैं कि वो उम्मी है, इसलिए कि किताब का इल्म उनके पास नहीं है, जाहिल हैं।
हमारी आवाम में कितने लोगों के पास कुरान का इल्म है? हम तो कुरान पढ़ते भी नहीं है ना जी खोलकर, सारा सारा साल गुजर जाता है, कुरान खोलकर पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिलती। घरों के अंदर रखा हुआ होता है ऊंचा किसी ताक के अंदर, उस पर भी साल गुजर जाती है, मट्टी पड़ी हुई होती है, उसको उठाकर साफ करने की भी तौफीक हमें नहीं मिलती। तो हमारे पास तो हमारा तो किताब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रब्त ही नहीं है अल्लाह के कुरान के साथ। तो इस हिसाब से हम भी जाहिल हैं, और जहालत एक ऐब है। जहालत क्या है? एक ऐब है। आपके पास किताब का इल्म नहीं है, मैं आपको ये कहूं कि भाई आप जाहिल, आप किसी आदमी को कहो भाई जाहिल आदमी, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं कि मुझे जाहिल कह रहा है? तो कुरान की इन आयात के हिसाब से हम भी जाहिल हैं। जाहिल हकीकी माने में है कि हमारे पास अल्लाह की किताब का इल्म नहीं है। दुनिया की जितने भी फनून है, ये फनून है, उलूम नहीं है। दुनिया की कोई भी डिग्री इल्म का दर्जा नहीं रखती।